بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ترکش ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جنہوں نے سیزن 1 نہیں دیکھا، میری گزارش ہے کہ پہلے وہ میرے چینل پر سیزن 1 کی کہانی سنیں تاکہ ان کو حقائق پہ مبنی یہ پوری داستان سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں چنگیز خان کی قیادت میں خونخوار منگولوں اور تتاریوں نے ظلم و بربریت سے مسلمان اور عیسائی دنیا دونوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اگر صلیبی حکومت کی بادشاہت کی بات کی جائے تو وہ لوگ مجموعی طور پر بزدل تھے اور مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، جبکہ منگول فوجوں کے مظالم کے آگے بہت بڑی سلطنتیں بھی دم توڑ رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ منگولوں کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترک قبائل بھی محفوظ جگہ کی تلاش کے لیے ہجرت کرنے لگے تھے۔ اوغوز ترکوں کا کائی قبیلہ باقی قبائل سے بڑا اور طاقتور تھا اور اس کے پاس نہایت بہادر جنگجو سپاہی تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سیزن 1 میں دیکھا بھی کہ کائی قبیلہ کافی مشکل حالات اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور صلیبی قلعہ فتح کر کے اپنی ہجرت کو رواں رکھتا ہے، اور اب ان کی ہجرت کا مقصد صرف اپنی بقا کے لیے سرسبز زمین کا حصول ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ پر ہونے والے ظلم کو بھی روکنا ہوتا ہے۔ اب دوسرے سیزن کا آغاز ہی دردناک ہوتا ہے۔ دوران ہجرت منگولوں کے خلاف ترک اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے کائی قبیلہ اناطولیہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں قیام کے دوران ارطغرل اپنی بیوی حلیمہ سلطان کے ہمراہ سیر کے لیے نکلتا ہے، اور گھوڑوں کو پانی پلاتے وقت حلیمہ سلطان ارطغرل کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ ارطغرل ابھی اسی خوشی میں کھویا ہی ہوتا ہے کہ منگول فوج ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ ارطغرل اپنی بیوی کو قبیلے کی طرف بھاگنے کا کہتا ہے اور خود اکیلا مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر زخمی ہونے کے بعد ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور منگول اپنے سردار کے دیے ہوئے حکم سے اسے زندہ گرفتار کر کے ساتھ لے جاتا ہے۔ بہرحال حلیمہ سلطان بڑی مشکل سے جان بچا کر جب قبیلے واپس پہنچتی ہے تو دل دہلا دینے والے مناظر دیکھی ہے۔ قبیلہ تباہ و برباد اور جل کر راکھ ہوتا ہے، اور ہر طرف جلتی ہوئی لاشیں منگولوں کے ظلم و بربریت کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ منگول بڑے ظالم اور خوخار تھے۔ وہ بڑے حملے سے قبل چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی افواج بھیج کر اور ہمیشہ گھات لگا کر چھوٹے چھوٹے گروہوں پر بزدلانہ حملے کر کے ان کو مار دیتے تھے، اور عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کھاتے اور ان کو زندہ جلا دیتے تاکہ قریبی علاقائی قبیلے ان کے خوف و دہشت سے ڈرتے رہیں اور ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح ارطغرل کا خانہ بدوش کائی قبیلہ اناطولیہ ہجرت کرتے وقت خونخوار منگولوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتا ہے، کیونکہ ارطغرل کی بہادری کے قصے تو ویسے ہی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور منگول ارطغرل کو پکڑ کر اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور ریاست کی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ بہادر کائی قبیلہ ارطغرل جیسے دور اندیش کی سپہ سالاری میں اگر تمام ترک قبائل کو متحد کر لیتا ہے تو یہ منگولوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر ابھریں گے۔ حلیمہ سلطان باقی قبیلوں کو ڈھونڈتے ہوئے قریب میں موجود ارطغرل کے ماموں خوشنود کے دو درگا قبیلے پہنچ جاتی ہے، جہاں پہلے ہی باقی بچہ کچا قبیلہ حیمہ خاتون، گلدارو اور شہناز خاتون کے ہمراہ زخمیوں کے ساتھ پناہ لینے آئے ہوتے ہیں۔ حیمہ خاتون کا بھائی سردار خوشنود کائی پر ہونے والے منگول حملے پر بہت افسردہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ بھال اور علاج کے لیے سدباب کا حکم دیتا ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل پر ہونے والے منگول حملے اور ارطغرل کے منگولوں کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بتاتی ہے، جس کے باعث سب مزید افسردہ ہو جاتے ہیں اور کائی کی آدھی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ سیزن 1 میں سلیمان شاہ اپنی ذمہ داریاں اپنے بیٹے ارطغرل کے ذمہ کر دیتا تھا، اور ارطغرل ہی سب کائی قبیلے کی امید تھی۔ منگول فوج کا کمانڈر نویان ہوتا ہے، جو چنگیز خان کا قریبی اور اعتماد والا ساتھی رہا ہے۔ ان ترک قبائل کو ختم کرنے کے لیے اوختائی خان نے اسی کمانڈر نویان کو بھیجتا ہے، جو کہ ایک ظالم اور درندہ صرف جنگجو ہوتا ہے۔ نویان کا سپاہی خاص تنگود ارطغرل کو گرفتار کر کے نویان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یوں ارطغرل کو تکالیف اور سخت عذابوں والے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ارطغرل کا ماموزاد بھائی تیمور خوشنود کا بیٹا اور بھائی گلدارو ارطغرل کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن ایک کاروان سرائے میں منگولوں کے ہاتھوں جلائی گئی کئی لاشیں دیکھتے ہیں جن میں ارطغرل کی انگوٹھی بھی پڑی ہوتی ہے، تو اس طرح وہ ارطغرل کے بھی جلا کر مار دیے جانے کا یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ منگول جو نومولود بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ کیسے ارطغرل جیسے شیر کو زندہ رہنے دے سکتے تھے۔ کائی کی مصیبتیں ہر آئے روز بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں اور انہیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ ارطغرل مر چکا ہے۔ منگول اس طرح گرے ہوئے تھے کہ وہ ارطغرل کے قبیلے پر اچانک حملہ کر کے بری طرح جلا دیتے تھے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی تھی، جن میں ترگت نورگل کی بیوی شاہینہ، جو کہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن وہ بے رحم منگول سے زندہ جلا دیتے تھے۔ ترگت نورگل جب واپس آتا ہے تو اپنی بیوی کی موت پر بے حد غمگین ہوتا ہے اور اپنے سسر دلی دویر سمیت منگولوں سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ شروع میں دونوں قبیلے اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن بعد میں دو درگا قبیلے والے کائی قبیلے کو یہ جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کائی قبیلہ مفلسی بیچارگی اور زخمی حالت میں ان کے پاس آیا تھا، جس کی مہمان نوازی کر دو درگا قبیلے نے ان پر احسان کیا ہے، اور اب کائی ان کے رحم و کرم پر گزارا کرے گا۔ کائی قبیلہ خوددار اور خود مختار قبیلہ رہا ہوتا
होता है और यूं किसी के एहसानात तले दबकर गुलामी नहीं कर सकता था। मुश्किल हालात तो हर दौर में हर किसी पर आते ही रहते हैं और यही मुश्किल हालात अपनों और बेगानों का फर्क है। इस सीजन में भी कबायली चपलिशों का एक लंबा सिलसिला चलता रहता है। उधर मंगोल अर्तुगरुल पर हर तरह के जुल्म करते हैं, लेकिन अर्तुगरुल हिम्मत नहीं हारता और कैद में सख्त तरीन सजा के दौरान मंगोलों की तमाम हरकत सकनात को नोट करता है। किस तरह जंगली बादशाह अपनी जादुई डफ बजा बजा कर नौयान को शैतानी दुनिया से जोड़ता है। टंगूत नौयान का सिपाही खास है और कुछ बाहर के लोगों की नौयान से मुलाकातें भी नोट करता है, जिसमें सल्जोक सल्तनत में नौयान के लिए काम करता जासूस कराबैक भी होता है। अर्तुगरुल के शहीद होने का यकीन कर लेने के बाद तैमूर अब्दुदुर्गा के साथ काई कबीले के सिपाहियों को भी सुपह सलार बन जाता है और काई के तमाम सिपाहियों के साथ इंतहाई सख्ती से पेश आता है, जिससे उनको बहुत दुख पहुंचता है कि अर्तुगरुल भाई हमेशा हमसे प्यार से पेश आते थे और हमें अपना भाई कहकर बुलाते थे। जबकि तैमूर बहुत मगरूर और गुस्से वाला होता है, उसमें कोई खास कबीलियत नहीं होती सिवाय सरदार के बेटे के। तैमूर अपनी सतीली माँ आलिया और गद्दारों के हाथे कठपुतली बन चुका था और उन्होंने उसे काई कबीले के खिलाफ भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी होती, और वो भी बिना किसी तहकीक के बेवकूफों की तरह हर झूठ को सच मान लेता है और हमेशा गुस्से में गलत इकदाम भी उठाता रहता है। दुर्गा में अर्तुगरुल के खास आदमियों और जवाजों से भी ज्यादतियां की जाती हैं। गुलदारू का सिपाही खास हमजा पर और कई सरदारों के मुहाफिज अब्दुर्रहमान पर भी गद्दारी के इल्जामात लगाए जाते हैं और उन्हें कबीला बदर कर दिया जाता है। जबकि गद्दार दुर्गा कबीले का सिपाही कोचबुश होता है। नूरगुल रोशान को भी कबीला बदर कर दिया जाता है क्योंकि वो हमजा और अब्दुर्रहमान की बेगुनाही पर यकीन रखते हैं और उन्हें दुर्गा के हाथों कत्ल होने से बचाते हैं, जिनमें से अकेला हमजा बागी हो जाता है क्योंकि तैमूर की बदतमीजी और गुलदारू के सख्त रवैये की वजह से हमजा दिल बर्दाश्त हो जाता है और नयान से हाथ मिला लेता है और हमजा बादशाह 12 मजीद कई सिपाहियों को भी लालच देकर साथ मिला ले जाता है, जो कि दुर्गा और तैमूर की सख्तियों से तंग आए हुए थे। जबकि अर्तुगरुल के जाबाज सिपाही तुर्गत नूरगुल और रुशान अब्दुर्रहमान समेत अर्तुगरुल की तलाश जारी रखते हैं। आखिरकार अर्तुगरुल बड़ी मुश्किलों से मंगोलों की कैद का शिकार हो जाता है और कुर्बुल मौत में पहुंच जाता है। वहाँ जंगलों में रहने वाला गनी उसे अपनी हार में ले जाता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। एक दिन अर्तुगरुल कुछ से जाब होकर अपने जाबाज सिपाही तुर्गत नूरगुल रोशान के साथ कबीले वापस आ जाता है। उसे देखकर कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है और एक बार फिर अर्तुगरुल की कबीले में एंट्री का एक बहुत शानदार सीन होता है जो कि तमाम मद्दाहों का दिल मोह लेता है। अर्तुगरुल वापस आते ही अपनी फौज की सुपरसलारी का ओहदा वापस मांगता है ताकि मंगोलों से बदला लिया जाए और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए, नहीं तो मंगोल मुसलमान रियासतों और बाकी कबाइल को भी तबाह कर देंगे, क्योंकि अर्तुगरुल उनके जुल्म सितम का निशाना बन के आया होता है और सजा के दौरान उनके तमाम नापाक अज़ाइम जान लेता है और अब नौयान के हर कदम से वाकिफ होता है। मगर दुर्गा कबीले वाले जो कि काई कबीले को भी खुद में जम करके एक बड़ी ताकत बनने के लिए उस पर कब्जा करने का सोचे बैठे थे, इन दोनों कबीलों की सरदारी हासिल करने के लिए सरदार खुशनूद की दूसरी बीवी आलिया और उसके कहने पर मगरूर तैमूर हर चाल चल रहा होता है और उसे अर्तुगरुल की वापसी की कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो जानता था कि उससे सिपाहियों की कमान वापस ले ली जाएगी, क्योंकि सिपाही अर्तुगरुल को अपनी जान से बढ़कर चाहते। लेकिन दौरान कैद अर्तुगरुल पर मंगोल बेइंतहा तशद्दुद करते थे और उसके हाथ में कील ठोंकर उसके हाथ को नकारा बना देते थे। अर्तुगरुल की इस कमजोरी का इल्म तैमूर को हो जाता है और वो जरगे में सबको बताता है कि अर्तुगरुल से तलवार भी नहीं पकड़ी जाती और फैसला अर्तुगरुल के खिलाफ आता है और उसका भाई गुलदारू और माँ हैमा खातून भी इस बात पर तैमूर की हिमायत करते हैं, जिसका अर्तुगरुल को बहुत दुख होता है। तैमूर काफी हिमायत से खुद ही सुपरसलार रहता है जो कि अर्तुगरुल की नजर में मुहिज बच्चा होता है और अर्तुगरुल को जरगे में शिकस्त होती है। अर्तुगरुल से सुपरसलारी तो क्या एक सिपाही की जिम्मेदारियां भी वापस ले ली जाती हैं और उसे अपने हाथ की जख्म की सेहतयाबी के लिए आराम करने का कहा जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक हाथ जख्मी होने पर जब अर्तुगरुल अपनी तलवार ही नहीं पकड़ सकता तो सुपरसलारी कैसे संभालेगा। जबकि वो नहीं जानते थे कि सुपरसलारी तैमूर के बस की बात नहीं और न ही जंग बेवकूफी गुस्से या तलवार से जीती जाती है, बल्कि दुश्मन को शिकस्त देने के लिए एक ज़हीन दूरंदेश और दुश्मन की तमाम चालों को समझ उन्हें नाकाम बनाने वाले और अपनी फौज को बेहतरीन कमांड करने वाले सुपरसलार के जोरे बाजू और हुस्न से जीती जाती है और ये तमाम खूबियां अर्तुगरुल में मौजूद होती हैं। आरिफ साहब अर्तुग बे जो अर्तुगरुल का कबीले में सबसे करीब तरीन साथी होता है, वो तबीब होने के साथ साथ उन्हीं सफेद दाढ़ियों वालों का जासूस भी होता है जिनसे अर्तुगरुल मिला था। अर्तुगरुल की तलवारबाजी का ये अंदाज था कि वो अपने बाएं हाथ से तलवार और दाएं हाथ से खंजर चलाया करता था, लेकिन जालिम मंगोल उसका तलवार चलाने वाला हाथ नकारा बना देते हैं, जिसे देखकर तबीब आरिफ भाई कहते हैं कि इसको ठीक होने और दोबारा तलवार पकड़ने के काबिल बनाने में काफी लंबा अरसा लगा है, लिहाजा बेहतर है आप आराम करें और अपने हाथ के दोबारा फाल होने का इंतजार। लेकिन अर्तुगरुल खामोश बैठने वाला नहीं था, उसकी दूरअंदेशी ने भांप लिया था कि मंगोल हमला जरूर करेंगे, लिहाजा न जरगे में शिकस्त और न हाथ का दर्द उसके हौसले पस्त करता है और वो अपनी कोशिश जारी रखता है, क्योंकि उसके नजरियात दूसरों से मुख्तलिफ होते थे। अर्तुगरुल चाहता है कि मंगोलों पर सर्दियों की बजाय अभी हमला कर दे, क्योंकि इस वक्त वो खास तैयार भी नहीं है, क्योंकि बाद में उसकी इमदाद को और भी जालिम मंगोल फौज आ मिलेगी और फिर कुछ भी नहीं बचेगा और वो सब कुछ तबाह कर देंगे। लेकिन सब इसको अर्तुगरुल की जिद समझते हैं। चुनांचे अर्तुगरुल मंगोलों के दोबारा हमले से पहले अपने तौर पर खुद को तैयार करने की कोशिश करता रहता है और लोहार दिली दमीर से कहता है कि आप अपना काम दोबारा इस दुर्गा कबीले में शुरू करें और मेरे हाथ के लिए एक खास किस्म की आनी जरा बनाएं जो मेरे जख्मी हाल की ढाल
ڈھال بنے اور میرے ہاتھ کی اس کمزوری کو دور کرتے ہوئے میرے اس ہاتھ کو طاقت بخشے۔ ارطغرل اسی طرح خفیہ طور پر منگولوں کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے اور خود کو جنگ کے لیے تیار کرتا رہتا ہے، اور بائیں ہاتھ کے علاوہ دائیں ہاتھ سے بھی تلوار بازی کی مشقیں کرتا رہتا ہے۔ دلی دمیر کے علاوہ اس کے جانباز سپاہی نورگل اور دوشان بھی اس کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں۔ درگاہ میں ارطغرل کے علاوہ اس کے خاص آدمی اور جانبازوں سے بھی زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ تیمور کی سختیوں اور بدتمیزی سے نورگل اور روشان بھی تنگ آ کر سپاہی کی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں اور اب ارطغرل کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ تیمور کو شہناز کی بہن روشنی سے پیار ہو جاتا ہے۔ تیمور کی سوتیلی ماں عالیہ جھوٹی ہمدردی دکھا کر روشنی کے ذریعے کائی کی اہم راز حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ تیمور کے سپاہیوں میں سے کچھ غدار ہوتا ہے اور کئی محاذ پر قبیلے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور منگولوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل کو علم ہوتا ہے کہ غدار کوئی دو درگا قبیلے کا ہی ہے، لیکن الزامات کی زد میں ہمیشہ کئی آتے رہتے ہیں۔ کوچہ بخش تیمور کو غلط خبریں دیتا ہے اور قبیلے کی خبریں نویان تک بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ غداروں کے غلط الزامات اور افواہوں سے سب ارطغرل سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، جس وجہ سے اس کا بھائی گلدارو بھی ارطغرل کے خلاف ہی رہتا ہے۔ قبیلہ بدر عبد الرحمن کو تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ وہ بے گناہ ہوتا ہے اور شروع سے ہی کئی کے سرداروں کا وفادار محافظ رہا ہوتا ہے۔ بنا کئی قبیلے کو اعتماد میں لیے دو درگا قبیلہ بھائی عبد الرحمن کو سخت اذیت دیتا ہے اور اسے پھانسی کا حکم سنا دیا جاتا ہے، مگر ارطغرل جو کہ کبھی کسی غیر کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اس مقام پہ کیسے اپنے سپاہی کو سولے چڑھنے دیتا، لہٰذا وہ دلی دمیر عارف بھائی چھوٹے جنگجو طاہر کے ساتھ رات کو عبد الرحمن کو قید سے بھگا دیتا ہے۔ عبد الرحمن کو قید میں بھگانے کے جرم میں ارطغرل کو بھی اپنے جانباز دوست نورگل اور روشان کے ساتھ قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ ارطغرل کی غیر موجودگی میں نویان قبیلے میں اپنا تاجر افراسیاب بھیجتا ہے کہ قبیلے میں ایسی چالیں چلے کہ قبیلہ وسائل اور معاشی لحاظ سے برباد ہو جائے۔ ارطغرل اپنے جانباز سپاہیوں کے ہمراہ منگولوں کے خلاف اپنی مہم جاری رکھتا ہے اور غنی کی غار میں تمام منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہی عبد الرحمن کو اپنا جاسوس بنا کر نویان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی ہر چال سے آگاہ رہتے ہوئے بہتر منصوبہ بندی کر سکے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ حمزہ کی طرح نویان عبد الرحمن پر بھی آسانی سے یقین کر لے گا، کیونکہ وہ قبیلہ بدر کے بعد پھانسی سے بھاگا ہوا ملزم ہو۔ عبد الرحمن کامیابی سے نویان کے دل میں جگہ بنا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارطغرل شیخ ابن عربی سے ملتے ہیں۔ ملاقات میں ابن عربی ان کو بتاتے ہیں کہ اب صرف قبیلے کو بچانے کی بات نہیں رہی، بلکہ اس وقت پوری امت مسلمہ عیاشی میں ڈوب کر اپنے اقتدار کو بھول چکی ہے اور اب ہمیں ایسی سلطنت کی کاوش کرنی ہے جہاں انصاف اور ایمان کا سکہ چلتا ہو۔ اور ارطغرل جو نویان اور قبیلے کی لڑائیوں میں الجھا تھا، اسے اب نئی منزل دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور اب وہ ترک سلطنت کے متعلق سوچنے لگا۔ بزرگ اولیاء کی محفل میں ارطغرل کو ایک پاک قمیض پہنائی جاتی ہے اور اس کی کامیابی کے لیے خاص دعائیں کی جاتی ہیں۔ اب ارطغرل کی سوچ وہاں تک ہوتی ہے جہاں باقیوں کی سوچ جواب دے جاتی ہے۔ جہاں گلدارو صرف قبیلے کا سوچتا ہے، وہاں ارطغرل پوری مسلمان امت کا سوچ رہا ہوتا ہے اور ان کے درمیان یہ اختلاف ہمیشہ سے رہتا ہے جس کا فائدہ سب غدار اور دشمن اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ سلجوق سلطنت کا جرنیل عتاب ارتکش دو درگا قبیلے آتا ہے، کیونکہ جب اسے ارطغرل کے ساتھ ہونے والے سلوک کا پتہ چلتا ہے تو وہ رہ نہیں پاتا اور سردار خشنود کے منہ پر ہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہیرا ہے مگر تم لوگ اس سے اندھے ہو۔ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں۔ اگر ارطغرل کا ہاتھ زخمی ہے تو کیا وہ اب بھی پورے قبیلے میں سب سے زیادہ مضبوط اور بہادر ہے۔ عتاب ارتکش ارطغرل سے ملنا چاہتا ہے اور قبیلے سے باہر اس سے گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے اور ارطغرل کو بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی سارم جس کو تم شہید سمجھتے ہو وہ زندہ ہے اور سلجوق ریاست کے لیے منگولوں کے سردار اور کوتائی خان کے بیچ رہ کر ان کی جاسوسی کرتا ہے اور اب وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر کچھ خاص معلومات لے کر لوٹنے والا ہے۔ ارطغرل اور عتاب ارتکش کی یہ ملاقات کی ساری باتیں غدار سپاہی جاسوس کوچہ بھی سن لیتا ہے اور نویان تک سارے احوال پہنچاتا ہے۔ ایک اگلی ملاقات میں عتاب ارتکش ارطغرل کو سارم کی جاسوسی کے متعلق مواد دینے والا ہوتا ہے جس میں منگولوں کی لشکر کی تفصیل، ان کے مقامات اور ان کی حساس کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان پر منگولوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے جس میں منگولوں کے ساتھ غدار حمزہ اور اس کے 12 غدار سابقہ کائی لباس میں ملبوس سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ ارطغرل عتاب ارتکش کو بچانے کے لیے پہنچ جاتا ہے لیکن منگول تنگوت کے تیر سے عتاب ارتکش شہید ہو جاتے ہیں، جس کا الزام بھی ارطغرل پہ لگ جاتا ہے کیونکہ عتاب ارتکش کے ساتھ والے سپاہی عتاب ارتکش کو ارطغرل کے ہاتھوں میں دم توڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان پر ہونے والے حملے میں انہیں منگولوں کے ہمراہ وہی کچھ کائی لباس میں غدار سپاہی بھی نظر آتے ہیں، لہٰذا ارطغرل اس الزام میں بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اس بات سے فائدہ اٹھانے غدار عالیہ کا غدار بھائی مہردین قبیلے آتا ہے جو سلجوق سلطنت کے وزیر سعد الدین کوپک کا خوشامدی چمچہ ہوتا ہے۔ سعد الدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا جو سلجوق سلطنت کے بادشاہ علاء الدین کو مار کر خود تخت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ منافق اور غدار ہر طرح کے مکروہ چالیں چل رہا ہوتا ہے لیکن ارطغرل اس سے اپنی راہ میں رکاوٹ نظر آتا ہے۔ مہردین اسی سعد الدین کوپک کی چمچہ گیری کر کے تمام ترک قبائل کی سرداری لینا چاہتا ہے اور اس غدار کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف ہر سازش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ عتاب ارتکش کے قتل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غدار سعد
सादुद्दीन कोपेक और उसका चमचा महरुद्दीन अर्तुगरुल को अपने रास्ते से हटाने का बेहतरीन मौका मिल जाता है और वो अर्तुगरुल को रियासती गद्दार करार देते हुए कत्ल के जुर्म में जिंदा या मुर्दा लाने का फरमान जारी करवाते हैं। अर्तुगरुल के खिलाफ गुस्से से भरपूर तैमूर अपने दो दुर्गा के सिपाहियों के हमरा अर्तुगरुल की तलाश में निकलता है, मगर उसकी इत्तला को चबुश नयान को कर देता है और नयान घात लगाए बैठा अर्तुगरुल और तैमूर के दरमियान हाथापाई से लुत्फानंदोज हो रहा होता है। अर्तुगरुल का एक और जाबाज सिपाही बामसी भी आ जाता है और वो खूब अकचवश की पिटाई करता है। अर्तुगरुल तैमूर को हकीकत बताने के बाद अपने जाबाजों के हमरा वहाँ से अपने मिशन के लिए रवाना हो जाता है और तैमूर को वार्न करता है कि उसके पीछे आने की कोशिश ना करे। घात लगाए बैठा नयान इसी मौके की तलाश में था और तैमूर पर हमला कर देता है। वहाँ कोचबुश अपनी गद्दारी साबित करता है और तैमूर के सामने नयान की सफ में चला जाता है। तैमूर को बुरी तरह मारने और जख्मी करने के बाद नयान उसका अधमरा जिस्म गड़े में फेंक कर जंगली जानवरों की खुराक बनने के लिए छोड़ जाता है और कोचबुश को कहता है कि कबीले वापस जाकर तैमूर के कत्ल का इल्जाम भी अर्तुगरुल पर लगा दो। कबीले में इस खबर ने सबको हिला दिया होता है और सब काई से तंग आ जाते हैं कि हर मुसीबतें हम पर काई की वजह से आ रही हैं। अर्तुगरुल की मुखालफत में अब सब अर्तुगरुल के खून के प्यासे हो जाते हैं और हालात बिगड़कर बद से बदतरीन हो जाते हैं और दो दुर्गा के बागी सिपाही हमें खातून के खेमे को घेर लेते हैं। हालात को संभालने के लिए अर्तुगरुल कबीले वापस आता है, ये जानते हुए भी कि उसे देखते ही मार दिया जाएगा, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित करने और अपने कबीले पर लगे इल्जामात और मुश्किल हालात में अंजाम परवाह किए बगैर शेर की तरह हालात का सामना करने आ जाते हैं। इस बार भी अर्तुगरुल की एक बार फिर एंट्री धुआंधार होती है और एक बार फिर काई कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है और आते ही अर्तुगरुल सबसे पहले गद्दार कोचबुश का सर कलम कर देता है और नारा लगाता है कि गद्दार का ठिकाना हमेशा से जहन्नम, जिससे उसके कबीले के लोगों में के दिलों में तो अर्तुगरुल की बेगुनाही साबित हो चुकी होती है, लेकिन दो दुर्गा कबीले वाले अभी तक अर्तुगरुल को कातिल और गद्दार समझते हैं और उस पर सल्जूकी जरनैल अताब अर्तुगरुल तैमूर के कत्ल के अलावा कोचबुश सिपाही का भी कत्ल होता है और कैदी अब्दुर्रहमान को फरार करने और कबीले के कवानीन की खिलाफवर्जी करने के इल्जाम अर्तुगरुल खुद को अदालत में पेश करता है, जिस पर सादुद्दीन कोपेक का चमचा महरुद्दीन अपनी ही अदालत लगाकर अर्तुगरुल को सजाए मौत सुनाता है। अर्तुगरुल कहता है कि ना तो मुझे तुम्हारे मुंसिफ होने, न तुम्हारी झूठी अदालत और फैसले पर यकीन है और न ही मुझे कोई मौत का डर। अर्तुगरुल के सिपाही तैमूर को गड़े से उठाकर उसकी जान बचाकर उसे खनी की गार में ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवा देते हैं। खनी साहब, आरिफ साहब और शेख इब्ने अरबी भी वहीं मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल को सजाए मौत देने के वक्त उसके जाबाज आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मौके पर शेख इब्ने अरबी तैमूर को वापस लेकर आ जाते हैं और वो सच बता देता है कि गद्दार अर्तुगरुल नहीं बल्कि कोचबुश होता है और अर्तुगरुल सब इल्जामात से बरी जिम्मा है, जिस पर महरुद्दीन शदीद गुस्से में आ जाता है कि उनका सारा मंसूबा नाकाम हो गया और उनके राह का सबसे बड़ा पत्थर मरते मरते दोबारा आ गया। और इधर नयान भी शदीद गुस्से में होता है कि उसे तैमूर को जान से मार देना चाहिए था और वो अर्तुगरुल को मारने में अपनी सरगर्मियां और भी तेज कर देता है। तैमूर की मुसलसल नाकामियों के बाद और उसकी हालत बेहतर न होने की वजह से उससे सिपाहियों की कमांड वापस ले ली जाती है और दोबारा अर्तुगरुल को सुपरसलार बनाने पर गौर किया जाता है, लेकिन अर्तुगरुल साबित करता है कि उससे कोई लालच नहीं। वो अपने भाई गुलदारू को फौज का सुपरसलार बनवाता है, जिस काई समेत दुर्गा सरदार भी अफसराजी होते हैं। तैमूर की आंखों के आगे से पर्दा हट जाता है और वो राय रास्त पर आ जाता है। गद्दार महरुद्दीन और आलिया सादुद्दीन कोपेक के मशवरों पर मजीद चलते रहते हैं और उसी तरह आलिया की भतीजी और महरुद्दीन की बेटी गोंचा गुल भी एक मकार औरत होती है, जिससे वो गुलदारू को अपने इश्क में फंसाने का मिशन देते हैं ताकि गुलदारू को आसानी से इस्तेमाल करते हुए कई कबीले पर भी सरदारी का हसूल, हमायत और असर रसूख यकीनी बनाया जा सके। शहनाज खातून जो पिछले सीजन में इब्ने अरबी की बदौलत अपने किए हुए गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर चुकी होती हैं, वो अपनी बला की जहानत से गद्दार आलिया खातून गोंचा कुल और महरुद्दीन की साजिशें भांप लेती है और उसकी मुखालफत आलिया से हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से गुलदारू शहनाज खातून से बहुत गुस्से होता है। इस मौके का फायदा उठाकर गोंचा गुल गुलदारू को अपने इश्क के जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती है और इस तरह गुलदारू गोंचा गुल से दूसरी शादी की तरफ माइल हो जाता है। इधर अर्तुगरुल अपने बड़े मकसद यानी बहाली अरूज की तरफ गामजान रहता है। इसी सिलसिले में अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को दिली दमीर के साथ कोनिया रवाना करता है, लेकिन
لیکن راستے میں منگول تنگوت اپنی فوج سمیت حملہ آور ہو جاتا ہے. ان کو حملے سے بچانے کے لیے ایک جنگجو آتا ہے جو کہ ارطغرل کا سگا بھائی سارم ہوتا ہے. ارطغرل کو دینی شخصیت ابن عربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری پر ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی مغرب کی جانب صلیبی و بازنطینی سرحد کے قریب ہجرت کرنا چاہ رہا تھا. اور خود ارطغرل کے خواب میں اس کا باپ سلیمان شاہ بھی اسے اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا قبیلہ بازنطینی سرحد کی طرف لے جائے اور ایسے اسلامی ریاست کے لیے تگ و دو کرے جہاں ہماری نسلیں اسلامی اقدار کے مطابق مت کریں. انہی دنوں ارطغرل بازنطینی سرحد پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سرسبز و شاداب زمین دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں اپنی نسل پروان چڑھانے کی ریاست دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہیں پر کچھ بازنطینی باشندوں کی بھی مدد کرتا ہے اور انہیں صلیبی فوج کے مظالم سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ راستے میں چند قابل کاریگروں کو بھی ظالموں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچاتا ہے اور قبیلے واپس آ جاتا ہے. وہاں حریمہ سلطان اور دلی دمیر کو پاتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ اس طرح راستے میں ان پر حملہ ہوا تھا اور سارم نے انہیں بچایا. سارم کے زندہ ہونے کی خبر سن کر اما حائمہ خاتون، گلدارو اور پورے کائی قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تغل اپنی فوج اور ان کے سپہ سالار بھائی گلدار کو نویان کے ٹھکانے کا پتہ دیتا ہے اور ان کی تمام تر کمزوریوں، حساس معلومات اور ان پر حملے کا بہترین وقت اور بہترین حکمت عملی والی ترکیب بتاتا ہے. یہ تمام خبریں نویان کی فوج میں موجود ارطغرل کے جاسوس عبد الرحمن نے اس تک پہنچائی ہوتی ہیں. حلیمہ سلطان ارطغرل کو بتاتی ہے کہ سارم کسی خاص مشن پر ہے اور فی الوقت قبیلے میں واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا ارطغرل سے ملنا چاہتا ہے اور اسے اپنا شریک راز کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اکیلا کارواں سرائے میں اس سے ملنے آئے. ارطغرل اپنے بھائی سارم سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے جو کہ بہت ضروری تھا اور اس وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لیتا. جبکہ دوسری طرف نویان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عبد الرحمن جاسوسی کر رہا ہے تو اسے مار مار کر قرب الموت پہنچا دیتا ہے اور خود سارم اور ارطغرل کو کارواں سرائے میں مارنے کے لیے بیس بدل کر اپنے چند سپاہیوں سمیت روانہ ہو جاتا ہے. اور اب جبکہ دو درگا قبیلے اور کائی قبیلہ متحد ہو کر گلدارو کی سپہ سالاری میں ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا، وہ اور محردین تیمور اور تمام سپاہیوں کو ساتھ لے کر ارطغرل کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق نویان کے ٹھکانے پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس مقام اور ان کا ٹھکانہ جلا دیتے ہیں. گلدارو غدار حمزہ کو بھی گرفتار کر لیتا ہے اور زخمی عبد الرحمن کو بازیاب کروا لیتا ہے، جبکہ باسور تنگوت اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں. ادھر جب ارطغرل اپنے بھائی سارم سے ملتا ہے جو کہ انتہائی ایموشنل سین ہے، ملاقات میں سارم اپنے مشن کے بارے میں اور کامیابیوں کے بارے میں اسے آگاہ کرتا ہے اور اسے اغوث خان کی مہر دکھاتا ہے کہ وہ اس مہر کی طاقت سے ہم ہر محاذ پر اپنی کامیابی یقینی بنا سکتے ہیں اور اس مہر کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں. نویان ان پر حملہ کر دیتا ہے اور مہر چھین کر لے کر جانے ہی والا ہوتا ہے کہ ارطغرل اپنے خنجر کے وار سے نویان سے مہر واپس لے لیتا ہے اور اسے زخمی حالت میں بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. سارم اس حملے میں بری طرح زخمی ہو جاتا ہے. ارطغرل واپس اسے قبیلے علاج کی گھر سے لے آتا ہے. سارم کو دیکھ کر اما حائمہ خاتون کے آنسو ہی نہیں رکے. ادھر نویان واپس جب اپنے ٹھکانے پہنچتا ہے تو اپنے مقام کی تباہی کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ انہیں ناک کو چنے چبا رہا ہے، مگر تنگوت پہلے ہی نویان سے تنگ ہوتا ہے اور اسے جان چھڑا کر خود منگول فوج کا کمانڈر بن کر اکتائی خان کا خاص آدمی بننا چاہتا تھا. اب نویان جنگل کی بجائے ایک غار میں اپنے بچوں کو سپاہیوں سمیت مقیم ہو جاتا ہے کہ واپس اکتائی خان سے اور فوج منگوا کر ارطغرل سے بدلہ لے گا. عارف صاحب کے علاج سے عبد الرحمن اور سارم جلد سے جاب ہو جاتے ہیں. قبیلے میں حمزہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور گلدارو سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ نویان کو اس تک لائے گا. وہ گلدارو کو غدار تاجر افراسیاب کی حقیقت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ مجھے نویان تک لے کر جا سکتا ہے. افراسیاب اس سے قبل ایک اور منصوبے پر ہوتا ہے اور نویان کے حکم پر وہ شہناز خاتون کو اغوا کرتا ہے اور گھوڑا گاڑی میں حمزہ اور شہناز خاتون کو چھپا کر لے جاتا ہے، مگر نہ ہی گلدارو کو نہ ہی حمزہ کو شہناز کا علم ہوتا ہے. گلدارو کو ابھی بھی حمزہ پر شک ہوتا ہے کہ حمزہ اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا اور کہیں یہاں سے نکلنے کے لیے اور نویان کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کے لیے کوئی چال تو نہیں چاہ رہا. اسی اور افراسیاب کے پیچھے ایک سپاہی داؤد لگا دیتا ہے جو کہ پکڑا جاتا ہے اور تنگور کے ہاتھوں بہت مار کھاتا ہے. نویان اسے واپس قبیلے بھیج دیتا ہے کہ گلدارو کو بتائے کہ شہناز خاتون کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو غوث خان کی وہ مور جو سارم کے پاس ہے وہ مجھے لا کر دے. جبکہ سارم کے دوران علاج پہنچا وہ ان کے خیمے سے وہ مور چوری کر کے لے جاتی ہے کیونکہ اس کے باپ محردین کو بھی سعد الدین کوپیک مور چرانے کا حکم دیتا ہے. سارم جب مور کو غائب پاتا ہے تو اپنے بھائی گلدارو اور حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ جس پر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ غدار ابھی بھی قبیلے میں موجود ہے جس کی رسائی خیموں تک ہے. مجبوراً گلدارو کو نقلی مور لے جانا پڑتی ہے. گلدارو اپنے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر خود بات چیت کرنے کے لیے نویان سے ملنے قلعہ آگے جاتا ہے اور نویان کو مور دے کر شہناز خاتون کو بازیاب کروا لیتا ہے اور نویان حمزہ کو ان پر حملے کرنے کا کہتا ہے، لیکن حمزہ اپنی راست بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلدارو کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نویان سے لڑتے لڑتے حمزہ شہید ہو جاتا ہے اور وہیں پر تنگوت ہاتھ لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور باہر نہیں آتا اور نویان کو مار کھاتا دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے. اور ایک بار پھر گلدارو کو فتح ہوتی ہے. وہ اپنی بہادری اور بہترین حکمت عملی سے نویان کو اکیلا مار مار کر شکست دیتا ہے اور قیدی بنا کر قبیلے لے آتا ہے. گلدارو کی بہادری اور سپہ سالاری کی اب دونوں قبیلوں میں تعریفیں ہونے لگتی ہیں. ان دنوں ارطغرل قبیلے سے باہر اپنے کسی مشن پر ہوتا ہے اور تاجر کرمانی سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے. اگلے دن فیصلے کے بعد نویان کا سر کاٹنے ہی والے ہوتے ہیں کہ عین موقع پر غدار ریاستی وزیر سعد الدین کوپیک آ جاتا ہے اور وہ نویان کی سزا کو رکوا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ ریاست کے سلجوق اور منگولوں کے درمیان نویان کے بدلے 300 سلاروں کی رہائی کا معاہدہ ہوا ہے. طول پسند گلدارو کی ہمت مار کھا جاتی ہے اور اسے نویان کو غدار سعد الدین کوپیک کو سونپنا پڑتا ہے اور وہیں محردین اپنے آقا سعد الدین کوپیک کو
वो मोहर भी दे देता है। अर्तुगरुल का सिपाही रोशान को गुलबानो खातून से इश्क हो जाता है। गुलबानो का ताल्लुक जो दुर्गा कबीले की सरदार की पहली बीवी नूरू से वफादारी का होता है, वो अब भी कबीले की वफादार होती है। शहनाज खातून के जरिए गुलबानो खातून को मालूम होता है कि उसकी पहली सरदारनी नूरू को आलिया खातून ने जहर देकर मारा होता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती। नौयान को सादुद्दीन कोपेक अपने सराय ले जाता है और उससे ये बात मनवाता है कि कल उसके इस एहसान के बदले जब मैं सुल्तान बनूंगा तो मंगोलों और हमारे दरमियान इत्तेहाद करवाओगे। नौयान के बाद तंगूद सादुद्दीन कोपेक के पास आता है तो सादुद्दीन उसे अगोज खान की मोहर देता है और कहता है कि उसे यकता खान तक पहुंचाओ, जिसे देखकर वो खूब खुश होगा और उसे नौयान की गलतियों के बारे में भी बताकर उससे बआसानी सुपरसलारी ले सके। दूसरी जानिब सारम दिली दमीर के साथ नौयान का पीछा करते वहां तक आते हैं। सादुद्दीन कोपेक नौयान को तंगूद के हमरा रवाना करता है, लेकिन रास्ते में तंगूद अपने भाइयों के हमरा नौयान को मारने वाला होता है तो बादशाह अपनी जादुई डफ बजाकर चंद सिपाहियों को अपने बस में करके तंगूद के हमरा बाकी सिपाहियों से लड़वा देता है और खुद नौयान को लेकर वहां से फरार हो जाता है। तंगूद भी वहां से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन दिली दमीर और सारम तंगूद और उसके सिपाहियों पर हमला करते हैं। दिली दमीर पूरी बहादुरी के साथ लड़ता है क्योंकि उससे अपनी बेटी शाहीना को जिंदा दिला देने वाले मंगोलों पर बहुत गुस्सा होता है। दिली दमीर खूब जान लगाकर लड़ता है और लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। जब सारम तंगूद को मारकर उससे अपनी मोहर वापस ले लेता है और दिली दमीर की लाश को कबीले वापस ले आता है। दिली दमीर जैसे बहादुर की शहादत के लिए तकलीफें होती है। दिली दमीर एक बाहिम्मत जंगजू, शाहसवार और एक हुनरमंद लोहार जो कि कई कबीले के बहुत बहादुर जाबाजों के लिए मजबूत तलवारें बनाकर उनकी ताकत में इजाफा करते थे और दूसरी तरफ बच्चों को इस्लाफ की कहानियां सुनाकर अज़म बनाते। दिली दमीर जिरगे में भी मुमताज राय के मालिक थे और सलमान शाह की खास तकरीम वाले थे। रोबदार चेहरा, घनी मूछें और गरजदार आवाज के मालिक अर्तुगरुल के सिपाही भी थे। उनकी शहादत के लम्हात अब के लिए अफसोसनाक थे। इधर गद्दार आलिया खातून जहर दे देकर सरदार खुशनूद को कुर्बल मौत ला चुकी होती है और अपने भाई मोहरदीन के कहने पर खतरनाक जहर तैयार करती है ताकि सरदार खुशनूद को हमेशा के लिए सुला दे। वही जहर जो उसने सरदार खुशनूद की पहली बीवी नूरू को देकर मारा होता है। इस पर आलिया खातून अपनी भतीजी गोंचा गुल खातून के साथ मिलकर बिच्छू का जहर तैयार कर लेती है और तैमूर और रोशनी की शादी वाली रात उसे सरदार खुशनूद को देने का मंसूबा बनाती है। उन्हीं औकात में तैमूर और रोशनी के निकाह से दोनों कबीले फारिग हुए होते हैं। रोशान की महबूबा गुलबानो शरबत तैयार करती है और सरदार खुशनूद और आलिया खातून को पेश करती है। आलिया खातून उस शरबत में जहर मिला देती है जब ताकि उसका इल्जाम गुलबानो खातून पर आ जाए, क्योंकि आलिया खातून गुलबानो को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि वो गुलबानो शहनाज के कहने पर अपनी पहली सरदारनी नूरू के कत्ल की तहकीकात कर रही होती है जिसमें आलिया खातून मुलविस होती है। और अब की बार भी उसके मंसूबों के मुताबिक इस जहर से सरदार खुशनूद मर जाता है और सारे इल्जाम रोशान की महबूबा गुलबानो खातून पर आ जाता है और आलिया बड़ी मकारी से खुद बरी जिम्मा कर लेता है। लेकिन तो दुर्गा कबीले वाले तैमूर भी बहुत गुस्से में होता है और बिना किसी तहकीकात के उसे सजाए मौत का हुक्म सुना देते हैं। और मोहरदीन भी इस फैसले पर जल्दी से अमल दरामद चाहता था ताकि सरदार के कत्ल की तहकीकात में उसकी बहन, बेटी और उसका नाम ना आ जाए। गुलबानो पर जुल्म होता है, लेकिन अर्तुगरुल को यकीन होता है कि गुलबानो खातून मासूम है, लिहाजा वो अर्तुगरुल जो गैरों के साथ जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता था, भला वो कैसे मासूम गुलबानो को फांसी चढ़ने देता। लिहाजा एक बार फिर वो कबीले की गलत फैसलों के खिलाफ जाता है और फांसी से एक रात कबल मुकम्मल मंसूबे के साथ गुलबानो खातून को रोशान के साथ रार करवा देता है और वो गनी की कार में पनाह गुज़ीर हो जाते हैं। सादुद्दीन कोपेक बतौर वजीर सल्तनत तमाम तुर्क सरदारों को बुलाता है जिसमें काई से गुलदारो और अर्तुगरुल और दुर्गा से तैमूर रहता है। सादुद्दीन कोपेक अपने खुशामदी चमचे मोहरदीन को तमाम तुर्क कबाइल का सरदार बनाकर सब पर यह फैसला थोप देता है बिना किसी कबीले की राय जाने या किसी को एतमाद में लिए बगैर। इसकी अर्तुगरुल बहादुरी से सबके सामने मुखालफत करता है कि आप अपने तौर पर अपनी रियासत और तमाम तुर्क कबाइल की सरदारी के लिए हमसे राय नहीं ले रहे, बल्कि हम पर अपनी मर्जी का फैसला थोप रहे हैं, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। अब अर्तुगरुल तैमूर को अपने वालिदैन की कातों से रोशनास कराना चाहता था ताकि गुलबानो बेगुनाह साबित हो और असली मुजरिमों को सजा मिले। एक इत्तला के मुताबिक आलिया खातून उस जगह पहुंचती है जहां गुलबानो शहनाज खातून को नूरू और सरदार खुशनूद की कातलों के खिलाफ सबूत देने आता है। आलिया उजलत में उनसे सबूत छीनने आती है। अर्तुगरुल तैमूर और सारम छुपकर झाड़ियों से ये मनाजिर देख रहे होते हैं। आलिया गुलबानो और शहनाज पर अपनी तलवार से हमला करती है और उनके सामने अपने गुनाह को तस्लीम करती है कि मैंने नूरू और खुशनूद को कत्ल करके दुर्गा कबीला तबाह किया है और गोंचा गुल के जरिए काई को भी तबाह कर दूंगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही मैं ये साबित होने। ये सब बातें तैमूर सुन लेता है और उसे अपने वालिदैन के कातलों का इल्म हो जाता है और वो उससे वहीं कत्ल कर देना चाहता था, मगर अर्तुगरुल उसे समझाता है कि अपने हुस्न पर काबू रखे और सही वक्त का इंतजार जब तक कि हम मोहरदीन को भी नहीं दबोच ले। अर्तुगरुल के बेहतरीन मंसूबे के मुताबिक मोहरदीन भी अर्तुगरुल के सामने फंस जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अर्तुगरुल उसके कबीले के सामने बेनकाब करता है कि तुम्हारा जितना भी बड़ा रुतबा क्यों न हो, तुम्हें गद्दारी और सरदार के कत्ल की सजा जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ शहनाज खातून और हिलम सुल्तान को आलिया गोंचा गुल जरगमाल बना लेती हैं। वहाँ रोशनी और रहमा खातून भी पहुंच जाती हैं और उन्हें छोड़ने की इल्तिजा करती रहती हैं, लेकिन आलिया हलीमा सुल्तान को कत्ल करने ही वाली होती है कि अब्दुर्रहमान के तीर से हलाक हो जाती है जब गोंचा गुल फरार हो जाता है। और रोशनी को भी अपनी बहन की रासबाजी का इल्म हो जाता है और अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। रोशान और गुलबानो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि दूसरों को सजाए मौत देने के लिए झूठी अदालतें लगाने वाला मोहरदीन आज खुद कटहरे में होता है और मोहरदीन को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है।
और वो मरते दम तक धमकियां देता ही रहता है। ऐन गर्दन काटने से कबल इस बार फिर सादुद्दीन कोपेक आ जाता है और पहले की तरह इस बार फिर सजा रुकवाने का कहता है कि मेरे चेलों को मेरे हवाले करो, चाहे ये कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, ये मेरा रियासती बंदा है, इसको ना तो कोई पकड़ सकता है और ना ही कोई सजा दे सकता है। उसकी धमकियों के बावजूद अब अर्तगल उसे कामयाब नहीं होने देता और कहता है कि हमारे कबीले का गद्दार है और दो दुर्गा कबीले के सरदार मेरे मामू खुशनूद के कत्ल में मुलवस है। और महारदीन का सर सादुद्दीन कोपेक के सामने ही कलम कर देता है। सादुद्दीन को उसका सर देखकर कहता है कि अब ले जाओ। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त सीन होता है। एक और गद्दार अपने अंजाम को पहुंचता है। सब लोग अर्तगल के फैसले को सराहते हैं मगर सादुद्दीन उसे धमकियां देकर वहां से रवाना हो जाता है। इधर महारदीन का सिपाही खास भागकर अपने मालिक अर्तगल से बदला लेने के लिए खुद को सादुद्दीन कोपेक के लिए सर्फ कर देता है। उधर गद्दारू की तबीयत खराब हो जाती है और आरिफ साहब उसे दूसरे शहर इलाज के लिए भेज देते हैं। फौज की कमांड संभालने के लिए जरगा बुलाया जाता है और अब की बार सब अर्तगल की बहादुरी के मद्दाह होते हैं। और अब की बार तो सभी अर्तगल को सुपर तलार बनाने की तजवीज पेश करते हैं, लेकिन अर्तगल इस बार भी इनकार करता है क्योंकि उसका मकसद इससे काफी बड़ा होता है और अब की बार उसका भाई सालम पसलार बन जाता है। उसके अलावा सिपाही रोशान और गुलबानो की शादी भी हो जाती है। शहनाज खातून गुलदारू और रहमा खातून को खुशखबरी सुनाती है कि वो फिर मां बनने वाली है। इधर नौयान भी सादुद्दीन कोपेक के पास राय मिलने जाता है और गोचा गुल भी भागते जान बचाते सादुद्दीन के पास पना लेते हैं। सादुद्दीन कोपेक नौयान और गोचा गुल खातून दोनों को आपस में मिला देता है कि तुम दोनों शैतानी सफात के हामिल हो और तुम्हारा मकसद भी एक है, अर्तगल से बदला लेना, चुनांचे तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। इधर अर्तगल कबीले में हिजरत की बात करता है कि मैं मगरब में बाज़ंतीनी सरहद की तरफ हिजरत करूंगा, जो मेरे साथ आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता वो ना आए। मगर उसके भाई इस हिजरत की मुखालफत करते हैं क्योंकि गुलदारू और सारम सादुद्दीन कोपेक की हदायत के मुताबिक अहलत की तरफ हिजरत के ख्वाहिशमंद होते हैं। इधर कबीले में हलीमा सुल्तान बच्चे को जन्म देती है और अर्तगल अपने बेटे का नाम गंदूज रखता है जो सुलेमान शाह ने तजवीज़ किया होता है। अर्तगल का छोटा भाई जुलजान और हलीमा सुल्तान का भाई शाहिर जो कि जंगी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, कई साल पहाड़ों में मशकों के बाद वो कबीले वापस आ रहे होते हैं कि इत्तला पर नौयान अपने सिपाहियों समेत हमला कर देता है। अर्तगल भी इत्तेफाक से वहां पहुंच जाता है, लेकिन नौयान बादशाह के साथ मिलकर जुलजान और शाहिर को अगवा करके गार में ले जाता है। ये खबर हलीमा सुल्तान और रहमा खातून दोनों के लिए दिल दहला देने वाली है। दोनों कबाइल के सिपाही मिलकर नौयान के घर को ढूंढ रहे होते हैं। एक मुआहदे के मुताबिक नौयान जुलजान को सादुद्दीन कोपेक के हवाले कर देता है और जबकि जुलजान को ऐसे महसूस कराया जाता है कि उससे नौयान से छुड़ाया गया है कि सादुद्दीन कोपेक ने सारम से कुछ काम निकलवाने, तो उसे सराय बुलवा कर फौजी तौर पर जुलजान उसके हवाले करता है और एहसान जतलाता है कि देखो तुम्हारे कबीले की नाफरमानी के बावजूद मैंने तुम पर एहसान किया है। दूसरी तरफ नौयान शाहिर को अपने पास रखता है क्योंकि शाहिर सल्जूक की शहजादा होता है, तो वो उसे ऐसे बहलाते हैं कि तुम ही असल में सल्जूक सल्तनत के वारिस हो, ना कि सुल्तान अलाउद्दीन। तुम अलग फौज तैयार करो, हम तुम्हारे साथ हैं और कुछ कबाइल और बाकी सरदारों की हमायत भी हम तुमको दिला देंगे। शाहिर उनकी बातों में आ जाता है। उनकी हार की तलाश में उन पर नजर रखे नूर गुल पकड़ा जाता है और नौयान उसका सर कलम करने ही लगा होता है कि शाहिर उसे बचा लेता है कि इसे मत मारो बल्कि कैदी बना लो क्योंकि ये बहादुर नूर गुल मेरा पसलार बना। नौयान के जरिए चंद रियासती बागी सरदार शहजादा शहीद के साथ हाथ में बैत करते हैं और मुकम्मल तामुल की भी यकीन दहानी कराते हैं। यहाँ तक कि नौयान के दबाव में आकर शाहिर काई को भी खत लिखा है कि मेरी बैत करो वरना कल जब मैं हुक्मरान बनूंगा तो तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। मगर ये खबर वाकई काई कबीला सच मान लेता है। मगर ऐन उस वक्त हलीमा सुल्तान सफा लौट कर देखती है तो उसके सामने पोशीदा राज लिखा होता है कि मैं और नूरगुल भाई खैरियत से हैं मगर अर्तगल के इंतजार में। हलीमा सुल्तान ये अर्तगल को बताती है कि खत लिखने का ये पोशीदा तरीका उनके वालिद ने उन्हें सिखाया। इधर शाहिर नूरगुल को बताता है कि ये सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। मैं ना तो तुम्हारे और अर्तगल भाई के एहसानात भूला हूँ ना ही मैं सल्जूक सल्तनत का बागी। मैं तुम्हें यहाँ से फरार करवाता हूँ ताकि तुम अर्तगल भाई को लेकर हमारी मदद को पहुँच। जबकि सादुद्दीन कोपेक अपनी चाल के मुताबिक शाहिर को सल्तनत का बागी करार देकर उसे कत्ल करने का हुक्म कबीले वालों को देता है ताकि इस सल्जूकी शहजादे शाहिर को भी रास्ते से हटाया जाए और सारम से उसे ढूंढने और मार देने का हुक्म देता है। सारम जो शुरू से ही रियासत का वफादार रहा होता है और सलारी मिलने के बाद और जाने अनजाने जुलजान को नौयान से बचाने की वजह से सादुद्दीन कोपेक के एहसानात तले दबा होता है, अपने फौज को लेकर फौरन रियासत के हुक्म की तकमील के लिए निकल पड़ा। अब की बार फिर अर्तुगल जो कभी किसी गैर के साथ नाइंसाफी और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो इस मुकाम पर कैसे मासूम शाहिर को सादुद्दीन कोपेक के नापाक अज़ैम की बलि चढ़ने देता। जब अर्तुगल शाहिर को बचाने जाता है तो इसी कश्मकश में लड़ाई में शाहिर को तीर लग जाता है। अर्तुगल शाहिर को जख्मी हालत में हनी की घार में ले जाता है क्योंकि अभी उसकी बेगुनाही साबित होने तक उसे अब अपनों और गैरों की तरफ से भी जान को खतरा होता है। गनी और इब्ने अरबी की मौजूदगी में शाहिर का इलाज शुरू हो जाता है। भाई बाकिर की गद्दारी की वजह से नौयान रोशनी को अगवा कर लेता है और उसी घार में ले जाता है जहाँ उसकी माशूका गोंचा गुल भी होती है। तैमूर बाकिर को हर महाज पर गैरहाजिर देखता है तो उसे उसकी गद्दारी पे शक होता है। रोशनी के अगवा का सुनकर तैमूर शदीद गमगीन होता है क्योंकि पहले वो अपनी माँ, उसके भाई जो जंगों में शहीद हुए, फिर उसका बाप भी मर गया और अब उसकी अपनी बीवी रोशनी भी उसकी जिंदगी में नहीं रही तो वो टूट सा जाता है। दूसरी जानब नौयान की गैर मौजूदगी में गोंचा गुल रोशनी का तसादम होता है तो रोशनी गोंचा गुल को मार देती है। नौयान जब वापस आता है तो अपनी माशूका गोंचा गुल मरा हुआ देख कर रोशनी पर सही जुल्म करता है। जबकि ऐन मंसूबे के मुताबिक नौयान तैमूर को भी अपने जाल में फंसा लेता है जो कि अर्तुगल के लाख मना करने के बावजूद तैमूर
तैमूर अकेला ही बिना किसी मंसूबा बंदी की रोशनी को बचाने के लिए नोयान के पास चला जाता और नोयान रोशनी और तैमूर दोनों का कत्ल करता और यूं इसकी एक और दास्तान ने इख्तिताम। और अब दुर्गा कबीले का तैमूर के मरने के बाद कोई भी जानशीन नहीं बचा। दुर्गा कबीले में नए सरदार के इंतखाबात शुरू होता है। अर्तगल के हमायत याफ्ता आरिफ साहब और सादुद्दीन कोपी का एक और चमचा अख्तर खान उम्मीदवार होता है। सादुद्दीन कोपी की साजिशों की वजह से अख्तर खान नया सरदार मुंतखब हो जाता है, जबकि पूरे कबीले की दिल से खिदमत करने वाले तबीब आरिफ साहब को शिकस्त होती है। अर्तगल को नोयान के पड़ाव की इत्तला मिलती है तो वहाँ हमला करता है और उसके तमाम मंगोल सिपाहियों को मार देता है, जबकि बातू को भी नूरगुल अपने कुल्हाड़े से मार और वो गद्दार बाकर और बादशाह नोयान को भी गिरफ्तार। जबकि नूरगुल अपने कबीले को जला देने, अपनी बीवी शाहीना के कत्ल और दिली दमीर के साथ खाई जाने वाली कसम को पूरा करने नोयान को अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन अर्तगल का मकसद सिर्फ कबीला नहीं होता बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा होती है। वो नोयान को सल्तनत अलाउद्दीन के सामने पेश करना चाहता है ताकि वो उन सब लोगों के नाम उगले जो सल्जूक सल्तनत में रह के अपने मफादात को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जिनमें सादुद्दीन कोपे को भी बेनकाब करना था और शाहिर की बेगुनाही भी साबित कर। इसी बात के इख्तिलाफ पर नूरगुल अर्तगल को खुदाफिज कहकर उन्हें छोड़ के चला जाता है कि जिस शख्स ने हमारे अपनों को जिंदा जला दिया और जिसके पकड़ने और मारने के लिए हम सब कब से तगोदो करके थक गए हैं, अब जब वो मौका आ गया तो बजाय उसे कत्ल करने के हम इतनी आसानी से सुल्तान के हवाले करने वाले हैं। नूरगुल अर्तगल से रास्ता अलग करके चला जाता है। दोनों ही अपने अपने लिहाज से दुरुस्त होते हैं लेकिन मकासद में फर्क होता है। जबकि दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपे को नोयान की गिरफ्तारी का इल्म होता है तो उसे सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करके गद्दारों का राज फाश होने का खतरा होता है तो वो सारम को सल्जूकी फौज के हमरा भेजता है। वो अर्तगल समेत ताहिर नोयान बाकर सबको जिंदा गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया। सारम अर्तगल की कार वाले ठिकाने का घेराव कर लेता है और उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई में बाकर भागकर सादुद्दीन कोपे के पास चला जाता है, जबकि इसी हाथापाई में नोयान खुद को छुड़ा लेता है और सारम पर वार करता है, लेकिन हादसन अर्तगल के बचाने के चक्कर में धक्के से सारम एक नोकीली लकड़ी पर गिर जाता है। इधर नोयान और अर्तगल के दरमियान फैसला कुन जंग होती है। अर्तगल यके बाद दीगरे कई वार से नोयान को शदीद जख्मी कर देता है, यहाँ तक कि मार देता है। यहाँ पर इस सीजन में एक और बदतरीन दुश्मन का खात्मा हो जाता है, लेकिन वो नोयान का सर नहीं काटते तो हो सकता है कि वो जिंदा बच जाए और अगले सीजन में शायद अगले सीजन में दोबारा फिर वापस आ जाए। क्योंकि अर्तगल का सारा ध्यान आखिरी सांसें लेने वाले अपने जख्मी भाई सारम की तरफ होता है तो उसको बचाने के चक्कर में उसे फौरन कबीले ले जाता है, लेकिन उसका कसूरवार भी सभी अर्तगल को समझते हैं। बाल आखिर सारम से जाब हो जाता है और बताता है कि हादसे के दौरान ऐसा हुआ और अर्तगल ने नोयान को मारा। अब का एक कबीले की सरदारी के लिए गुलदारू इंतखाबात करवाता है, खुद को उम्मीदवार खड़ा करके सारम से हमायत ले लेता है और अर्तगल को भी कहता है कि मेरी हमायत करो क्योंकि तुम खुद ही कहा करते थे कि जरगे आपके और शिकारगाहें मेरी। लेकिन अर्तगल कहता है कि अब से शिकारगाहें भी मेरी और जरगो सरदारी भी मेरी। एक बहुत ही जबरदस्त सीन होता है क्योंकि अर्तगल अपने कबीले में अब मजीद कोई जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और अपनी मर्जी से कबीले के मुस्तकबिल के तमाम अमूर अपने बाप सलमान शाह की हिजरत और उम्मत मुस्लिमों को मुतहिद करने के लिए अपने कबीले की भागदौड़ खुद संभालना चाहता है। लिहाजा गुलदारू के मुकाबले में खुद को उम्मीदवार खड़ा करता है। गुलदारू की पुश्त पर गद्दार सादुद्दीन कोपे था, जिसने दुर्गा के सरदार अख्तर खान को सोना देकर गुलदारू के हमरा तमाम सरदारों में सोना बांटकर गुलदारू की हमायत करने का कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कबीले की सरदारी अर्तगल को मिले और वो ज्यादा ताकतवर बनकर उसके लिए खतरा का बायस बन सके। और गुलदारू के भी सरदार बनने का मकसद अर्तगल को अनातोलिया जाने से रोकना था, लिहाजा वो कबीले के सरदारों में सोना बांटकर अपने साथ मिला लेते। और कबीले के कुछ सरदार गुलदारू की इस बात की भी हमायत करते हैं कि हमें अब मजीद हिजरत नहीं करनी चाहिए और न ही हमें मजीद जंगें लड़नी। जरगे में अर्तगल के हमायती कम होते हैं, लिहाजा अर्तगल को जरगे में शिकस्त होती है और गुलदारू का ही कबीले का नया सरदार बन जाता है। बहरहाल अर्तगल शिकस्त के बावजूद भी अपने अज़ाइम से नहीं हटता और खुश होता है कि ये शिकस्त मेरे लिए दुश्मन और दोस्त में फर्क कर दे और वो हिजरत की तैयारियां शुरू कर दे। अब कई में वाज़हन दो हिस्से हो चुके हो, एक अर्तगल हलीम सुल्तान जुलजान ताहिर आरिफ साहब अर्तगल के जाबाज सिपाही तैमूर पाई जो कि अर्तगल को चाहते थे और कुछ और दोनों कबाइल के लोग जो अर्तगल में मगरिब की जानिब हिजरत पर आमादा, जबकि दूसरी जानिब गुलदारू सारम एनास खतून अख्तर सरदार कुछ सिपाही वो लोग जो अहलत की जानिब और अम जिंदगी के लिए हिजरत पर राजी थे। अहमा खातून भी दिली तौर पर अर्तगल के साथ, लेकिन वो हिजरत करने से कासिर और कबाइली रिवायात के मुताबिक अपने खावंद का खैमा मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। हिजरत से कबल गुलदारू अर्तगल को जाने से रोकता है क्योंकि दोनों के नजरियात मुख्तलिफ होने के बावजूद आखिर वो भाई तो होते ही हैं और उनका आखिरी बार मिलना भी एक इमोशनल सीन होता है और ये एक बहुत ही रुला देने वाला। हिजरत पर रवाना होते वक्त सरदार अख्तर खान अर्तगल की राह में रुकावट बनता है और खून रेजी की भी धमकी देता है और खुसूसन दुर्गा के लोगों और सिपाहियों को न जाने पर जबरदस्ती करता है। इस बहस व तकरार में कुछ लोग डर कर अर्तगल को छोड़कर अख्तर खान की सफ में जा खड़े हो जाते हैं। अर्तगल उसका शुक्रिया अदा करता है कि तूने मुनाफिकीन और बसीद सिपाहियों को मेरी सफ से निकलवा दिया और अब मेरे साथ आने वाले और मेरे सिपाहियों की तरफ मैली आंख से देखना भी मत और रुकावट डालने की कोशिश भी मत कर। अर्तगल अपनी एतमाद की जमात के साथ हिजरत पर रवाना हो जाता है। बादशाह ख्वाब में आकर सलमान शाह हेमा खातून को अर्तगल की जानब जाने का इशारा करते हैं तो वो भी अपने अबा व अजदाद का मुकद्दस परचम और सलमान शाह की तलवार लेकर अपने करीबी साथियों और अब्दुर्रहमान साथ हिजरत पर रवाना हो जाते। सारम और गुलदारू वगैरह खूब रोकने की कोशिश करते हैं कि अब पहले भाई चला गया और अब आप भी जा रही हैं, लेकिन वो माँ को नहीं टोके और उन्हें जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सादुद्दीन कोपे बाकर के हमरा
سپاہیوں سے ارطغرل کی ہجرت وال اپنے پر حملہ کرواتا ہے اور اسی ہاتھا پائی اور لڑائی میں سعد الدین کوپیک ایک اور جاسوس سپاہی حلیمہ سلطان سے بچہ چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ تعاقب میں ارطغرل جاتا ہے مگر وہ ارطغرل کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے کہ وہ بچے کو مار دے گا۔ عین موقع پر نور گل انہیں بچانے آ جاتا ہے اور رحمہ خاتون بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور غدار پر تیر کے وار سے بچہ چھڑا لیا جاتا ہے۔ ارطغرل اپنی ماں اور اپنے جانباز سپاہی نور گل کو دوبارہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ شہید دوبارہ اس حملے میں اور تیر کے وار سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل باقر اور باقی بڑے سپاہیوں کے سر نیزے پر لٹکا کر سعد الدین کوپیک کو بھجوا دیتا ہے اور اب سعد الدین کوپیک ارطغرل کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ ارجون گلدارو مشرق میں اہلت کی طرف اور ارطغرل مغرب میں بازرطینی سرحد پر ریاست کیل کے لیے لمبے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ راستے میں حملوں اور جھڑپوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اپنی ہجرت جاری رکھتے ہیں۔ اسی طرح سیزن 2 ہجرت کرتے ہوئے اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اب سیزن 3 کی کہانی بھی جلدی اپلوڈ ہو جائے گی۔ تب تک آپ میرے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کریں تاکہ سیزن 3 اور ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔